Good evening, everyone. Now, today we are going to discuss the next reaction of haloalkane, that is reaction with metals. So, we are going to cover lot many reactions today. Reaction with metals, then elimination reaction also we will discuss, and then we will start with the reactions of haloarenes. अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो haloalkanes की रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं. तो आज दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे हेलो अल्केन्स की. वन इज एलिमिनेशन एंड द अदर इज रिएक्शन विद मेटल्स. आफ्टर दिस द रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स विल गेट ओवर एंड वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ हेलो अरीन्स. तो एलिमिनेशन रिएक्शन and reaction with metals. देखिए, अभी कुछ मंथ्स पहले जब हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर पढ़ रहे थे ना, मैं हमेशा उस टाइम आपसे कह रहा था कि जितने भी रिएक्शंस आप हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ रहे हो, ये एक एक रिएक्शन आपको ग्रेड 12 में रिपीट होगी. और यहाँ भी अभी जो एलिमिनेशन रिएक्शन आप पढ़ोगे, दैट एलिमिनेशन रिएक्शन इज द वन विच यू हैव ऑलरेडी रेड. यू हैव रेड दैट इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स. प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा हुआ रिएक्शन है आपका. अनदर वन ग्रीन वाला. गॉट. सो for elimination reaction, let's take an alkyl halide. मैं आपको अभी जनरल फॉर्मूला दिखा रहा हूँ alkyl halide का. I am showing a general formula of alkyl halide, that is I am writing it as गेटिंग इट. ये जनरल अल्काइल हैलाइड मैंने दिखाया आपको. ये जो वैलेंसीज यहाँ पे अभी वेकेंट है, जहाँ पे बॉन्डिंग में कुछ मैंने लिखा नहीं है, यू कैन शो हाइड्रोजन एटम्स और अल्काइल ग्रुप ओवर देयर. एंड इसका रिएक्शन हम करते हैं विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. एक्चुअली दिस इज हीटेड विथ अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अगर आपको याद हो इसकी मैकेनिज्म जो बहुत सिंपल शॉर्ट वे में मैंने बताई थी, halogen atom from this carbon atom gets removed along with the shared electron pair. Heterolytic fission होता है, so halogen atom is removed along with the shared electron. कार्बन कैसा बचेगा यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज. एंड नेक्स्ट इज the removal of hydrogen from here. Hydrogen leaves the shared electron. It is removed as H plus. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है वो यहाँ छोड़ के जाएगा. तो that electron will come between two carbon atoms and will form a double bond, right? तो ये बनेगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन. अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया. This halogen joins with K plus of this forms KX. And H plus from here join with OH minus forming H2O. Fine. Now in this reaction you can see that halogen तो हमेशा जिस कार्बन से रिमूव हो रहा है that is alpha and adjacent carbon is beta, right? So it is understood that the halogen removal will be taking place from alpha carbon atom. लेकिन हाइड्रोजन का रिमूवल कहां से हो रहा है? बीटा से. दैट इज व्हाई द रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. और क्या नाम दिया गया है इसको? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. बीटा एलिमिनेशन के अलावा दिस इज आल्सो नोन एज
dehydrohalogenation reaction. Another name is dehydrohalogenation reaction. क्योंकि ओवरऑल क्या रिमूव हो रहा है मॉलिक्यूल से? ओवरऑल a molecule of hydrogen halide is removed. Hydrogen and hydrogen halide is removed. So that is why this is also known as dehydrohalogenation. Fine. Let's understand another important part of this reaction. Suppose we have this alkyl halide molecule क्या है? Name of the compound is 2-bromobutane. This is 2-bromobutane, right? And 2-bromobutane is heated with alcoholic potassium hydroxide. यहाँ पे this carbon atom over which bromine is bonded, ये आपका अल्फा कार्बन है और इसके जस्ट बाजू में we have बीटा कार्बन. एक और कार्बन है जो जस्ट इसके एडजेसेंट है, राइट? इसका मतलब यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी. In the first situation, let us imagine that hydrogen is removed from this carbon. तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? Between this two carbon atom. The product will be CH2 double bond CH, CH2, CH3. And what is the name of this product? But1ene, right? अब second situation में ऐसा imagine करते हैं that halogen is removed from here and the hydrogen atom be removed from this beta carbon. तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? यहाँ पे you will be getting the product as this is but2ene. प्रोडक्ट क्या बना? but2ene. Okay, but1ene and but2ene. Now a question arises that whenever we have such situation where two or more products are formed, there should be some rule to determine the major product. कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे ये पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, राइट? यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट जो है but2ene, ये मेजर प्रोडक्ट है एंड दिस इज मेजर प्रोडक्ट एज पर सेजेफ रूल. याद आ रहा है किसके अकॉर्डिंग ये मेजर प्रोडक्ट है? एज पर सेजेफ रूल. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेजेफ रूल. सेजेफ रूल क्या कहता है? सेजेफ रूल सेज दैट इन dehydrohalogenation reaction, the major product is that alkene which has more number of alkyl group across doubly bonded carbon atom. Dehydrohalogenation reaction में मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अक्रॉस नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ज्यादा है. ठीक है? सो इन dehydrohalogenation reaction, the major product is the one which has higher number of alkyl group across doubly bonded carbon atoms. ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉल सेजेफ रूल. दूसरी बार ये पढ़ रहे हो सेजेफ रूल, ये आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो. हाइड्रोकार्बन्स में अभी जस्ट 1-1.5 महीने पहले आपने पढ़ा है, ये सेकंड टाइम पढ़ रहे हो.
Okay, now after this the next reaction we will see, that is reaction with metals. ये भी पढ़ा हुआ रिएक्शन है, ग्रिग्नार्ड reagent का फॉर्मेशन देखेंगे and Wurtz reaction, but as it is part of this chapter यहाँ भी पढ़ लेते हैं. The next reaction is reaction of haloalkanes with metals. So haloalkanes like chloroalkane, bromoalkane, iodoalkane, except the fluoroalkanes, these are able to react with certain metals, not all metals, but with certain metals they are able to react, and then they form compounds. Okay, so what we were discussing, that alkyl halides, especially the chlorides, bromides and iodides, upon reaction with certain metals will form compounds where metal will have bonding directly with the carbon atom, और इनको क्या कहते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. इन्हीं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में वन ऑफ a very important class of organometallic compound was discovered by Victor Grignard. Very important class of organometallic compound which was discovered by Victor Grignard, and that is known as Grignard reagent. कैसे बनता है Grignard reagent? So for the preparation of Grignard reagent, alkyl halide, that is chloride, bromide or iodide, is allowed to react with magnesium metal in dry ether solvent, and as a result of this reaction they form RMgX. इसको commonly alkyl magnesium halide कह सकते हो, alkyl magnesium halide, और इसी को विक्टर ग्रिग्नार्ड के ऑनर में नाम दिया गया है ग्रिग्नार्ड reagent, also known as Grignard reagent. अब अगर आपको याद हो Grignard reagent, if I write it as RMgX again over here, you know that this magnesium metal is electropositive. तो ये क्या करेगा, whatever electron pair is there between carbon of alkyl group and magnesium, तो magnesium तो electropositive होने की वजह से will push the electron towards alkyl group. So carbon atom of alkyl group will bear a partial negative charge, और इस magnesium पे क्या charge आएगा, partial positive, and the halogen atom will have partial negative charge, right? Grignard reagents are highly reactive towards any source of proton. They are highly reactive towards any source of proton. Proton का source क्या क्या हो सकता है, water, ammonia, alcohol, right? So they are highly reactive towards any source of proton, and that is why Grignard reagents are prepared and stored in anhydrous condition. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में गिव रीजन में पूछा जाता है, that Grignard reagent should be prepared and stored under dry condition. Why? तो इसका रीजन क्या होगा, because Grignard reagents are reactive towards any source of proton, and that is why they need to be prepared and stored in dry condition. ठीक है, यहां लिखता हूं मैं, Grignard reagents are highly reactive towards any source of proton, like H2O, NH3, ROH, etc.
water, ammonia, alcohol, etc. So they are prepared and stored in dry condition. ये भी हम सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं. आपको याद हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में आपको हाइड्रोकार्बन्स में ही मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है, और ये भी आपको पढ़ा चुका हूं. दैट व्हाई द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर प्रिपेयर्ड इन ड्राई कंडीशंस. प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में आपको ये रिएक्शन भी पढ़ाया है मैंने. दैट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लाइक RMgX ऑन रिएक्शन विद, सपोज वाटर के साथ अगर रिएक्शन हो रहा है तो दिस फॉर्म्स अल्केन एंड बेसिक मैग्नीशियम हलाइड. ठीक है. तो इसी तरह कोई भी प्रोटॉन का सोर्स होगा वो उससे वो प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्केन में, एंड अनदर बाई प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड. फाइन. सो इसी रीजन से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करते हैं इन ड्राई कंडीशन एंड इट इज आल्सो स्टोर्ड इन ड्राई कंडीशन. फाइन. एक और रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अलावा, वर्ड्स रिएक्शन. वर्ड्स रिएक्शन भी आपका पढ़ा हुआ है, वो भी अल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ा था हमने, राइट. रिएक्शन विद मेटल्स में ही नेक्स्ट रिएक्शन है वर्ड्स रिएक्शन. इसको वुड्स भी बोलते हैं, वर्ड्स भी बोलते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो, स्पेलिंग याद होना चाहिए. एंड रिएक्शन क्या है वो याद रहना चाहिए. दिस इज द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड with sodium metal. Reaction of alkyl halide with, so what reaction में alkyl halide reacts with sodium metal. alkyl halide का reaction हम करेंगे sodium metal से and in dry ether और dry acetone solvent. alkyl halide reaction with sodium metal and the solvent is either dry ether or dry acetone. अब इस रिएक्शन में होगा क्या, ऐसे याद रखना. this halogen of the two alkyl halide molecules will be forming sodium halide with sodium metal, और R ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, अल्केन. हम लोग ऑलरेडी ये रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में देख चुके हैं. अल्केन इज फॉर्म्ड एंड अल्केन के साथ बनेगा सोडियम हलाइड. एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं इस रिएक्शन से रिलेटेड कि ये जो सोडियम हलाइड फॉर्म हो रहा है ये कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड, राइट. एंड आयोनिक कंपाउंड ये ड्राई ईथर सॉल्वेंट में प्रेसिपिटेट हो जाएगा, राइट. प्रेसिपिटेटेड. तो प्रेसिपिटेट होने की वजह से क्या होगा कि ये तो प्रेसिपिटेट हो गया, सॉल्यूशन में क्या बचा, यही बचा. तो Le Chatelier's principle will be followed. As this is getting precipitated, to replenish more sodium halide, the reaction should be taking place in this forward direction, and more alkane will be formed. ठीक है. तो Le Chatelier's principle is involved in this. इसका एक एग्जाम्पल भी बताता हूं. Can you identify this compound? IUPAC नेम बताओ तो इस कंपाउंड का. 2-bromopropane, right? So 2-bromopropane upon reaction with sodium metal, can you name the alkane formed by this reaction? alkane कौन सा फॉर्म होगा, हाँ, वेरी गुड. 2,3 dimethyl butane and sodium bromide will be precipitated in dry ether
which will cause the reaction to shift in forward direction as per Le Chatelier's principle. Fine. चलिए, so reaction of haloalkane gets over here. हेलोअल्केन्स की रिएक्शन यहाँ खत्म हुई. कौन कौन से रिएक्शंस डिस्कस किए? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया और मैकेनिज्म डिस्कस करने के बाद स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स भी डिस्कस किया. बिलीव मी, दैट पर्टिकुलर पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. SN2 SN1 से क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस में रहते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा एलिमिनेशन, और तीसरा रिएक्शन पढ़ा रिएक्शन विथ मेटल्स. रिएक्शन विथ मेटल्स में हमने दो रिएक्शन पढ़े, एक में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन और दूसरे में वर्ड्स रिएक्शन. अब नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स. बहुत मजा आएगा. हेलोअल्केन्स में जो मजा आया उससे 10 गुना ज्यादा मजा आएगा इन द रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स, और सिंपल भी है. इसको ऑफ कीजिए. Now as we have completed reactions of haloalkanes, now let's move towards reactions of haloarenes. And again in the reactions of haloarenes, first we will be talking about nucleophilic substitution of haloarenes. Nucleophilic substitution reaction of ARX means haloarenes. Nucleophilic substitution reactions of haloarenes. Here, the first thing you need to know that haloarenes undergo nucleophilic substitution reaction, but the reactivity for nucleophilic substitution is far smaller, far less than that of haloalkanes. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देते तो हैं, हेलोअरीन्स का भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इनकी रिएक्टिविटी हेलोअल्केन्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है. They are very less reactive towards nucleophilic substitution as compared to haloalkanes. और इसके डिफरेंट रीजन है, उन्हीं रीजन को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर रिएक्शन पे शिफ्ट करेंगे. तो कुल मिला के टोटल 4 रीजन है. 4 रीजन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं. haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution reaction compared to haloalkanes due to, अब इसमें फर्स्ट रीजन मैं बता रहा हूं, रेजोनेंस. और इस रेजोनेंस में आपको क्या समझना है, इसके लिए सबसे पहले एक हेलोअरीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं. आपको पता है हैलोजन एटम के पास 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं? हैलोजन एटम हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो one of this lone pair comes here in conjugation with ring, and you can draw the resonating structures ahead. ये देगा double bond between carbon and halogen atom. You can show a positive charge on halogen and negative charge on carbon.
और इसको फिर कंटिन्यू कर दीजिए, राइट ऑल अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ऐसा ही होगा ना शौर्य, हर्षित, आता है ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना? So this gives now what you can see in this entire resonating structure that there is a double bond formed between carbon and halogen, नहीं? कार्बन और हेलोजन एटम के बीच में क्या दिख रहा है आपको? डबल बॉन्ड। Can we say that there is a partial double bond character between carbon and halogen in haloarenes? हलोअरीन्स में कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एंड डबल बॉन्ड इज शॉर्ट एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में डबल बॉन्ड शॉर्ट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। सो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक दिस बॉन्ड। इस बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा ना, जबकि हेलो अल्केन्स में तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक करना इजी है। तो यहां क्या लिखोगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने के बाद आप लिखोगे ड्यू टू रेजोनेंस a partial double bond character is formed between carbon and halogen. A partial double bond character is formed between carbon and halogen, which makes carbon halogen bond difficult to break in haloarenes. Okay. So due to resonance, a partial double bond character is formed between carbon halogen, which makes carbon halogen bond difficult to break in haloarenes. रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर फॉर्म हो रहा है, और इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है। अब सोचो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, अगर वो इजीली ब्रेक नहीं होगा तो रिएक्टिविटी तो कम होगी, राइट? दूसरा है सेकंड रीजन, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन में आपको क्या समझना है? सो यहाँ पे मैं एक हेलो अरीन ड्रॉ करूंगा और एक हेलो अल्केन ड्रॉ करूंगा। ये चलो, ये ड्रॉ किया हेलो अरीन, और ये ड्रॉ कर रहा हूं हेलो अल्केन, ठीक है? तो इसमें आपको ये समझना है दैट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp2, क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन एटम इज sp3, है ना? फिर आपको ये भी पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of sp2 carbon greater than sp3 carbon. sp2 कार्बन sp3 कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट? which cause carbon halogen bond in haloarenes to be shorter
and stronger. sp2 कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन हलोअरीन्स, जिसकी वजह से हलोअरीन्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कैसा होगा, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग. दैट मीन्स डिफिकल्ट टू ब्रेक. दैट इज वाई रिएक्टिविटी इज लेस. ठीक है, कंप्लीट कर लोगे इसको. सो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन ARX is difficult to break and makes haloarine less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Fine. So the third reason for less reactivity of haloarine is because of instability of phenyl carbocation. Phenyl carbocation is not stabilized by resonance. बेंजाइल कार्बोकेटायन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है, फेनाइल कार्बोकेटायन में देयर इज नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन. अनस्टेबल कार्बोकेटायन है वो, तो SN1 मैकेनिज्म तो इसमें होगा ही नहीं. एंड द लास्ट रीजन इज रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच हलोअरीन एंड न्यूक्लियोफाइल. दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो दोनों के बीच रिपल्शन कैन हैपन and it will cause haloarine to be less reactive than haloalkanes. Now let's discuss nucleophilic substitution reaction of haloarenes. अभी तक हमने डिस्कशन में ये कहा haloarenes are less reactive towards nucleophilic substitution. मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि haloarenes का nucleophilic substitution होगा ही नहीं. They undergo nucleophilic substitution and let us see how. So let's take example of chlorobenzene and chlorobenzene upon reaction with aqueous sodium hydroxide or fusion with molten sodium hydroxide at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure. Followed by acidification, or you can say hydrolysis in presence of acid, forms phenol. क्या हुआ ओवरऑल रिएक्शन में? ओवरऑल रिएक्शन में you can see that the chlorine atom of this chlorobenzene got replaced by OH. यही हुआ ना? लेकिन आप साथ में रिएक्शन की कंडीशन भी तो देखो. You can see here that such a high temperature 623 Kelvin and such a huge pressure 300 atm pressure is required for this reaction to happen. ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन को डाउ नाम के केमिस्ट ने दिया था. इसको हम डाउ प्रोसेस कहते हैं. This is Dow's process and actually this is one of the method of preparation of phenol. अगले चैप्टर में preparation of phenol में पढ़ोगे. This is one of the method for preparing phenol from chlorobenzene or from haloarine. लेकिन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बॉन्डेड हो, if we have the electron withdrawing group, like best electron withdrawing group that you know, बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपके नॉलेज में है जो कई बार आया है? नाइट्रो ग्रुप. नाइट्रो ग्रुप, NO2 group is an electron withdrawing group. So you will see that if electron withdrawing group is present in this compound, in the benzene ring,
the reactivity of that particular haloarine will increase. जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा स्पेसिफिक पता चलेगा. लेट्स टेक द सेम रिएक्शन फॉर पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन. अब मैं पारा पोजीशन पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले रहा हूं. ओके, एंड लेट्स सी द रिएक्शन कंडीशन. तो पारानाइट्रोक्लोरोबेंजीन के साथ वी रिक्वायर सोडियम हाइड्रोक्साइड 443 केल्विन, नो प्रेशर, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द रिएक्शन विल टेक प्लेस, एंड सेकेंड स्टेप इज सेम, एसिडिफिकेशन. और इससे आपको मिलेगा पारानाइट्रोफेनॉल. पारानाइट्रोफेनॉल. Just compare the two reactions and the conditions for the reaction to take place. यहाँ पे देखो टेम्परेचर इज सच हाई 623 केल्विन, प्रेशर इतना हाई रिक्वायर्ड है 300 atm प्रेशर. लेकिन यहाँ पे जस्ट प्रेजेंस ऑफ वन NO2 ग्रुप हियर हैज मेड द रिएक्शन सो सिंपल, इजी. 443 केल्विन कितना टेम्परेचर हुआ बोलो? 443 केल्विन. डिग्री सेल्सियस में कितना हुआ? 100 समथिंग होगा, 200 डिग्री सेल्सियस से कम ही होगा, है ना? इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना? सो दैट टेम्परेचर इज नॉट दैट हाई एज कंपेयर टू दिस. अच्छा, एक और काम करते हैं. नाउ लेट अस टेक नाइट्रो ग्रुप एट टू पोजीशंस. ऑर्थो पोजीशन पे और पारा पोजीशन पे लिया है ना? 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. सो हियर यू कैन सी दैट अगेन ऑन रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट अराउंड 368 केल्विन. इतना ही है ना? 368 केल्विन है. फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, it forms 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल. क्या फॉर्म कर रहा है? 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल. दिस इज 4 नाइट्रोफेनॉल and this one is 2,4 डाइनाइट्रोफेनॉल. देख रहे हो फिर से, है ना? चल एक और मैजिक दिखाता हूं. वो मैजिक ये है कि नाउ वी आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑल पोजीशन. यहां पे NO2 रख दिया, पारा पोजीशन पे भी रख दिया, और ये दूसरा वाला जो ऑर्थो पोजीशन है यहां पे भी नाइट्रो ग्रुप रख दिया. क्या है ये? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. 2,4,6 ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन. और इसका रिएक्शन हम कैसे कर रहे हैं? जस्ट वी आर वार्मिंग दिस विथ वाटर, वार्म विथ H2O. दिस फॉर्म्स a very important product. Cl get replaced by OH, और यहां पे 2, 4 और 6 पोजीशन पे क्या होगा? नाइट्रो ग्रुप. नाम क्या है इसका? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल. यही होगा ना? एंड कॉमनली दिस इज नोन एज पिक्रिक एसिड. कॉमनली इसको पिक्रिक एसिड कहते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. PYQ पास्ट ईयर क्वेश्चंस में बार बार ये पूछा गया है. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दीज 4 रिएक्शंस? यहां पे देखिए सिंपल हेलोअरीन है, रिएक्टिविटी इज वेरी लेस, दैट्स व्हाई द रिएक्शन कंडीशन यू कैन सी 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर. लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंस बढ़ता गया वैसे वैसे रिएक्टिविटी इंक्रीज होती गई, नहीं? और रिएक्टिविटी इस एक्सटेंट तक इंक्रीज हो गई कि जो रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे हो रहा था
Now the same is taking place just by warming it with water. नहीं? Just a minute. Okay. So now let's see. Yes. So the conclusion of this 4 reaction is an electron withdrawing group when present at ortho or para position or both in a haloarene increases its reactivity for nucleophilic substitution reaction. An electron withdrawing group when present at ortho or para position or both in a haloarene increases its reactivity for nucleophilic substitution reaction. And now we will understand with the help of a mechanism that why do this electron withdrawing group increases the reactivity towards nucleophilic substitution reaction. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंट होने से रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज हो रही है, ये हम एक मैकेनिज्म के थ्रू समझेंगे. ठीक है, एक मैकेनिज्म आपको बताऊंगा, उसी से सारा क्लियर हो जाएगा. फाइन. Okay. Now, with the help of mechanism, we will understand that why the presence of electron withdrawing group at ortho and para position increases reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution. समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के ऑर्थो और पारा पोजीशंस पे प्रेजेंट होने की वजह से हैलोअरीन्स की रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्यों इंक्रीज हुई, वो इस मैकेनिज्म से समझ में आएगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ ये ले रहा हूँ 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन. चलेगा? 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और इसको ऐसे शो कर रहा हूँ. एंड वी हैव न्यूक्लियोफाइल OH माइनस. न्यूक्लियोफाइल क्या है? OH माइनस ही है ना. OH माइनस इज द न्यूक्लियोफाइल. आपको पता है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये पोलर बॉन्ड है. इस कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है. राइट. तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल शो द न्यूक्लियोफिलिक अटैक. यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा और एज अ रिजल्ट ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन एटम पे. तो आपको यहाँ फर्स्ट स्टेप में ये जो इंटरमीडिएट मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा. क्लोरीन एटम इज बॉन्डेड टू इट. क्लोरीन के साथ अब OH भी आ गया और इस कार्बन एटम पे वी हैव अ नेगेटिव चार्ज नाउ एंड NO2 ग्रुप हियर. फाइन. अब मैं इसी कंपाउंड की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो कर रहा हूं. ये जो आपका इंटरमीडिएट बना सनी, ये इंटरमीडिएट क्या है? कार्बन आयन. कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मीन्स कार्बन आयन. एंड नाउ आई विल बी शोइंग द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस कार्बन आयन. Here, this lone pair comes between this two carbon atom
और ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन विल कम ओवर दिस कार्बन एटम, है ना। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखा रहा हूं मैं। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लाइक दिस। अब आप देखो इस कार्बन एटम पे जब ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है या इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है, आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, नाइट्रो ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कमिंग ओवर हियर, नाइट्रो ग्रुप क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को यह अपनी तरफ पुल करेगा तो इट विल बी फैसिलिटेटिंग अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो खींचेगा, कार्बन एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उतना बढ़ता जाएगा और न्यूक्लियोफाइल फिर इजीली अटैक कर पाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहां पे दिस लोन पेयर कम्स ओवर हियर और ये वाला कम्स ओवर हियर, ठीक है। सो now you have chlorine atom here, here OH, here NO2 group, and this carbon atom will be having a negative charge. ऐसा कह सकते हैं शॉर्ट में that the negative charge is delocalizing throughout the ring, कह सकते हैं ना। ऐसा लिख सकता हूं मैं, नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइजिंग। अब अगले स्टेप में क्या दिखाना है, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ Cl माइनस होगा। तो Cl माइनस कैसे रिमूव करेगा, Cl माइनस यहां से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके रिमूव होगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये वापस आके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो एज अ रिजल्ट यू विल बी गेटिंग, अब यहाँ पे सिर्फ बचा OH ग्रुप, यहाँ बॉन्ड और यहाँ भी बॉन्ड, यहाँ पे वी हैव NO2 ग्रुप प्रेजेंट और इसके साथ Cl माइनस, ठीक है। तो ओवरऑल मैकेनिज्म में हमें क्या समझ में आ रहा है, ओवरऑल मैकेनिज्म में ये समझ में आ रहा है दैट द इलेक्ट्रॉन पेयर हियर इज मूविंग एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। ये जो आपको इंटरमीडिएट मिला इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ कहाँ डीलोकलाइज होके गया है, एट ऑर्थो एंड para position. That means the presence of NO2 group at ortho and para position will be withdrawing that electron toward it and will facilitate attack of nucleophile. NO2 ग्रुप जब भी ऑर्थो और पारा पोजीशन पे प्रेजेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करके न्यूक्लियोफाइल के अटैक को फैसिलिटेट करेगा, इंक्रीज करेगा, राइट। That is why it increases reactivity of haloarenes for nucleophilic substitution. अब आप एक चीज सोच के बताओ कि suppose nitro group is not present at ortho and para position, it is present at meta position. मान लेते हैं कि नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो क्या मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस से इसको कोई असर पड़ेगा? Is the presence of nitro group at meta position will affect reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution? करेगा या नहीं? It will not be affecting the reactivity. क्यों? क्योंकि we do not have electron pair going at meta position. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर एक बार भी मेटा पोजीशन पे नहीं गया, ओके।